students, how are you all? Hope you all are doing very good. Today students, we are going to start our second chapter of class 3rd, which is about plants, part and their functions. So today in this class students, we are going to discuss about the different parts of the plants and the functions performed by those different parts. Okay, let's start the chapter. So, we see plants all around us. They are of different shape and sizes. Plants having tall and woody stems are called trees. Some plants are small. They have soft green stem. They are called herbs. And some bushy plants have woody stems and branches. They are called shrubs. So students, about this paragraph if I talk, so this we have discussed in our previous chapters also, that there are different types of plants around us which are of different shape and different sizes. Okay, so ऐसे plants जिनकी जो stem होती है काफी tall and woody होती है उन्हें trees कहा जाता है, right? फिर इसके अलावा कुछ और ऐसे plants हैं जो काफी small होते हैं जिनकी stems काफी soft होती है, green stems होती हैं and they are called herbs, right? Then there are some another type of plant also which are kind of bushy. Okay, they have many woody stems and branches and are called shrubs. You can see in this picture they have shown you the different parts of the plant, different types of trees like mango, pea, rose. Okay, the bamboo plant can grow up to 48 centimeter in one day. See, bamboo plant जो है एक दिन के अंदर about 48 centimeter तक grow करता है. Like a human body, a plant also has different parts. So जैसे एक human body में different parts होते हैं, similarly plant के भी different body parts होते हैं. The part of the plant which holds it in the soil is called the root. अब plant का वो part जो उसको soil के अंदर hold करके रखता है, जो soil के नीचे वाला part होता है plant का, that is called root. And the part of the plant which is above the soil is called the shoot. And plant का वो part जो soil से ऊपर होता है, above the ground होता है, that is called the shoot part. You can see in this picture, these are the different parts of a plant. So ये ground level है. Ground level से जो नीचे ये part है plant का, इसे कहा जाएगा roots. Okay? Then the above whole part, ये पूरा part आपका कहलाता है shoot part. अब shoot part पे भी different parts होते हैं. Like these are buds, leaf. Okay, this is flower, fruits. These are branches, stem, fruit. So all these are what? Different parts of the plant which are there in the shoot part. The shoot has, see, shoot में क्या क्या होता है? Stem, branches, leaves, buds, flower, thorns and fruits. Now first of all, we are going to talk about the root. So majorly students, there are two kind of root. Number one, tap root, other is fibrous root. Tap root, the single main root from which several thinner roots arise is called the tap root. तो एक single main root जिसके through बहुत सारी छोटी छोटी सी roots arise होती हैं, उस main root को tap root कहा जाता है. You can see in this picture, this is tap root. ये main एक root है जिससे बहुत सारी छोटी छोटी सी several roots arise हो रही हैं. This is called main root or tap root. Balsam, hibiscus, bean, mustard, these all have tap roots. Next we have fibrous root. Some plants do not have a main root, but they have a number of tiny roots attached to the end of the stem. It looks like a bunch of roots, and these are called fibrous root. So students, कुछ ऐसे plants भी होते हैं जिनकी कोई main root नहीं होती. Okay, इनके पास number of यानी कि काफ़ी सारी thin यानी कि पतली पतली सी छोटी छोटी roots होती हैं जो इनके stem वाले part के end से attached होती हैं. And ये सारी roots को क्या कहा जाता है? Fibrous root कहा जाता है. Actual में एक bunch की तरह दिखती हैं. Roots का जो bunch होता है उस तरीके से दिखती हैं. They do not have any kind of main root. Okay. Example, grass, onion, wheat, rice, etc. They all have fibrous root. You can see in this picture, ये आपकी fibrous root का example है. यहाँ पे क्या दिख रहा है कि roots की बहुत सारी एक bunch है. इसमें कोई main root नहीं होती है. Now the main functions of root. अब root के क्या क्या main functions है? Number one, it holds the plant firmly in the soil. सबसे पहले root क्या करती है? Plant को soil में firmly hold करके रखती है. It takes water and mineral soil from the soil and send them to other parts of the plant through the stem. ठीक है, रूट्स का सेकेंड फंक्शन होता है कि वो सॉइल में से वाटर एंड मिनरल्स को एब्जॉर्ब करती है एंड उसके बाद प्लांट के डिफरेंट पार्ट्स तक उनको सेंड किया जाता है थ्रू द स्टेम. सम रूट्स कुछ ऐसी भी रूट्स हैं जो अपने अंदर फूड स्टोर करती हैं. ओके, लाइक वेजिटेबल सच एज कैरेट एंड रेडिश. ये क्या है? ये वही रूट्स हैं जिनके अंदर फूड स्टोर होता है एंड वी ईट देम.
Now next we come to stem. The stem of a plant grows above the ground. It holds the plant upright. It also supports the branches and leaves. Different plants have different kinds of stem. अब stem कौन सा वाला पार्ट है? प्लांट का वो पार्ट जो above the ground, above the soil होता है. ओके, ये प्लांट को अपराइट यानी कि सीधा खड़ा रखता है, होल्ड रखता है. एंड उसके साथ साथ प्लांट्स की जो डिफरेंट टाइप्स ऑफ ब्रांचेस एंड लीव्स होती हैं उन्हें भी सपोर्ट प्रोवाइड करता है. डिफरेंट प्लांट्स के अंदर डिफरेंट काइंड्स ऑफ स्टेम्स आर देयर. द स्टेम ऑफ अ banyan एंड कोकोनट ट्री. banyan एंड कोकोनट ट्री की जो स्टेम होती है वो काफ़ी थिक, हार्ड एंड वुडी होती है एंड उसे कहा जाता है ट्रंक. अ मनी प्लांट में सॉफ्ट एंड वीक स्टेम होती है. रोज प्लांट में एक शॉर्ट वुडी स्टेम होती है जो कि स्ट्रॉन्ग एंड. नाउ द मेन फंक्शन, एक स्टेम के जो मेन फंक्शंस होते हैं, लेट्स डिस्कस अबाउट देम. नंबर 1, द स्टेम गिव्स सपोर्ट टू द प्लांट. सबसे पहले स्टेम का काम है प्लांट को सपोर्ट प्रोवाइड करना. इट मेक्स द प्लांट अपराइट. सीधा खड़ा रहने में भी प्लांट को कौन हेल्प करता है? स्टेम ओनली हेल्प्स आउट. नेक्स्ट, इट कैरीज वाटर टू द लीव्स. ओके, वाटर को लीव्स तक लेके जाने का काम भी स्टेम का होता है. इट ऑल्सो कैरीज द फूड मेड बाई लीव्स टू ऑल पार्ट ऑफ द प्लांट. फिर उसके बाद जो लीव्स फूड प्रिपेयर करती हैं उस फूड को डिफरेंट पार्ट ऑफ प्लांट तक कैरी करना इज ऑल्सो डन बाय द स्टेम ओनली. इन सम प्लांट्स, अब कुछ प्लांट्स में स्टेम वाला पार्ट भी है जो फूड स्टोर करता है. ओके, सो देर आर सम वेजिटेबल्स लाइक जिंजर एंड पोटैटो. दीज आर स्टेम्स. में जिंजर एंड पोटैटो स्टेम्स होती हैं जो कि अपने अंदर फूड स्टोर करती हैं. एंड क्योंकि ये अंडर द ग्राउंड ग्रो करती हैं इसीलिए आप इन्हें अंडरग्राउंड स्टेम्स भी बोलते हैं. एंड द स्टेम ऑफ शुगर केन स्टोर शुगर एंड वाटर. बात करें हम शुगर केन की जो कि गन्ना होता है, ठीक है, शुगर केन की जो स्टेम होती है वो अपने अंदर शुगर एंड वाटर को होल्ड करती है. The green color of leaf is due to the presence of green color pigment called chlorophyll which helps them to make food. So there is one more fact कि जो leaves का green color होता है वो किस वजह से होता है? leaves के अंदर एक green color का pigment present है, that is called chlorophyll. and chlorophyll ही है जो leaves को green color provide करता है and उसके साथ साथ food prepare करने में भी helpful होता है. So now we are going to talk about the leaf. Okay, so leaves are of different shape and sizes. Okay, some leaves are long and narrow, some are big and broad, some are round and some are small. So इस तरीके से there are different types of leaves. You can see this is the leaf of papaya, lotus, banyan, banana and mango leaves. Even their margins differ. See, लीव्स की जो मार्जिन्स होती हैं वो भी डिफरेंट होती हैं हर एक लीफ की. कुछ मार्जिन स्ट्रेट होती हैं, कुछ अनइवन होती हैं. हाउएवर ज़्यादातर जो लीव्स होती हैं वो सारी ग्रीन इन कलर होती हैं. नेक्स्ट वी हैव पार्ट्स ऑफ द लीफ. अब हम बात करते हैं लीफ के डिफरेंट पार्ट्स की. सो द फ्लैट एंड ब्रॉड पार्ट ऑफ अ लीफ इज कॉल्ड लैमिना. ठीक है, लीफ का जो फ्लैट और जो ब्रॉड पार्ट होता है उसे लैमिना कहा जाता है. Through the middle of leaf runs a thin tube that divides it into two parts. अब इस लीफ के मिडिल वाले पार्ट से एक थिन ट्यूब पास होती है जो उसे दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करती है एंड इस ट्यूब को कहा जाता है मेन वेन. यू कैन सी इन दिस पिक्चर ये जो ब्रॉड वाला पार्ट है सेंटर में इसे हम बोलेंगे लेमिना. ठीक है, उसके बाद सेंटर में से ये एक ट्यूब स्ट्रक्चर पास होता है जिसे आप मेल वेन कहते हैं एंड इस मेल वेन के थ्रू उसके अलावा सेवरल मेल साइड वेन्स अराइज होती हैं. ओके, लाइक दिस. A lot of small veins arise from the main vein. ठीक है, as I told you main vein से फिर उसके अलावा बहुत सारी छोटी छोटी veins arise होती हैं जो कि एक नेटवर्क बनाती है veins का and इन veins को कहा जाता है side veins. The stalk of the leaf is called petiole. उसके अलावा जो leaf का stalk होता है, you can see, I will show you in this picture. ये वाला जो part है, this part, ये आपके लीफ का स्टॉक वाला पार्ट है जिसके थ्रू एक लीफ एक ब्रांच के साथ अटैच होती है एंड दैट इज कॉल्ड पेटियोल. द सरफेस ऑफ अ लीफ हैज टिनी पोर्स कॉल्ड स्टोमेटा. द लीफ ब्रीथ्स इन एंड आउट फ्रॉम द स्टोमेटा ओनली. अब उसके अलावा लीफ के सरफेस पे बहुत छोटे छोटे से पोर्स होते हैं. दे कैन नॉट बी सीन बाय योर नेकेड आइज. ओके, एंड इन पोर्स को स्टोमेटा कहा जाता है. एक लीफ जो ब्रीथ करती है गैसेस को इन एंड आउट, दैट इज बिकॉज ऑफ स्टोमेटा ओनली. नाउ द मेन फंक्शंस. अब लीफ के मेन फंक्शंस क्या है? सबसे पहले अ प्लांट मेक्स इट्स फूड्स इन द लीव्स ओनली. लीव्स को स्टूडेंट्स किचन ऑफ द प्लांट, फूड फैक्ट्री ऑफ द प्लांट कहा जाता है बिकॉज लीफ ही वो पार्ट है प्लांट का जहाँ पे फूड इज प्रिपेयर्ड बाय द प्लांट्स. स्टोमेटा कहाँ प्रेजेंट होते हैं? लीव्स में प्रेजेंट होते हैं जो कि प्लांट को गैसेस एक्सचेंज करने में हेल्पफुल होते हैं. देन लीव स्टोर एक्स्ट्रा फूड. लीव्स में कुछ एक्स्ट्रा फूड भी स्टोर होता है एज इन कैबेज, लेटस, स्पिनच एक्सेट्रा. ओके,
Now, some parts of a croton leaf. See, there is a plant known as croton, and croton की जो leaf के कुछ parts होते हैं, they are not green. These parts cannot make food as they do not have chlorophyll. And ये part croton plant की leaves के वो part जो green colored नहीं है, so they cannot prepare their own food. उन पर्टिकुलर पार्ट्स में वहाँ फूड प्रिपेयर नहीं हो सकता बिकॉज वहाँ पे क्लोरोफिल प्रेजेंट नहीं होता है, एंड क्लोरोफिल ही है जो कि प्लांट को फूड प्रिपेयर करने में हेल्पफुल होता है. नाउ नेक्स्ट वी कम टू फ्लावर्स. फ्लावर क्या है? फ्लावर आपके प्लांट का ब्राइटेस्ट पार्ट होता है. फ्लावर्स डिफरेंट शेप, साइज एंड कलर्स के होते हैं. मोस्ट फ्लावर्स के पास एक प्लेजेंट, एक अच्छी स्मेल होती है. फ्लावर्स लुक ब्यूटिफुल. फ्लावर्स काफ़ी ब्यूटिफुल दिखते हैं. They grow at the tip of the main part called stalk. Okay? And ये कहाँ grow करते हैं? एक main part के tip पे grow करते हैं जिसे हम stalk कहते हैं. The sepals protect the flower. Sepals का काम है flower को protect करना जब वो अपनी bud की form में होता है. And just inside the sepal, and sepal के अंदर क्या होती है? Petals होती हैं. The petals attract insects and birds. And petals का काम होता है insects and birds को attract करना. You can see these are the different types of flowers like rose, lotus, sunflower. Now they have given you the main functions of a flower. Number 1, flowers are the reproductive part of the plant. Flowers हमारे plant के reproductive parts होते हैं. इसके अलावा flowers ही हैं जो आगे जाके fruits बनते हैं and finally उसमें से seeds arise होती हैं. The seeds, and in seeds के through फिर new plants grow किए जाते हैं. Cauliflower and broccoli, ये आपकी दो flowers हैं जिनके अंदर food stored होता है and we eat them as a vegetable. नेक्स्ट वी हैव फ्रूट्स. अ फ्लावर डेवलप्स इनटू अ फ्रूट. अब एक फ्लावर है जो आगे चल के फ्रूट में डेवलप होता है. द पेटल्स फॉल एंड द लोअर पार्ट ऑफ द फ्लावर गेट्स स्वोलन इनटू अ फ्रूट. जो पेटल्स होती हैं वो टाइम के साथ क्या होती हैं? गिर जाती हैं, एंड जो फ्लावर का लोअर वाला पार्ट है वो स्वोलन हो जाता है, फूल जाता है, एंड एक फ्रूट बन जाता है. व्हेन अ फ्रूट बिकम्स राइप, उसके बाद जब एक फ्रूट राइप होता है, पकता है, वो किस में चेंज होता है? उसका जो कलर है वो धीरे धीरे चेंज होने लगता है. मोस्ट ऑफ द वेजिटेबल्स एंड फ्रूट्स, ओके, ज़्यादातर जितने भी वेजिटेबल्स एंड फ्रूट्स हम खाते हैं वो प्लांट के फ्रूट वाला ही पार्ट होता है. बीन्स, पीस, टोमेटोज, ब्रिंजल एक्सेट्रा, ये क्या है? ये सभी प्लांट के फ्रूट्स होते हैं. सी बनाना एंड पाइनएप्पल. बनाना एंड पाइनएप्पल ऐसे फ्रूट्स हैं विच हैव नो सीड्स, जिनके अंदर सीड्स प्रेजेंट नहीं होती हैं. नाउ लेट्स टॉक अबाउट सीड्स. सो फ्रूट्स हैव सीड्स इनसाइड देम. फ्रूट्स के अंदर क्या होती है? सीड्स होती है. कुछ फ्रूट्स के अंदर केवल वन सीड इज देयर एंड सम हैव मेनी सीड्स. कुछ ऐसे फ्रूट्स हैं जिनके अंदर काफ़ी सारी सीड्स होती हैं. सम फ्रूट्स आर बिग. कुछ फ्रूट्स काफ़ी बिग होते हैं. सम आर स्मॉल ऑल्सो. सीड्स ग्रो इनटू न्यू प्लांट्स. अब इन फ्रूट्स के अंदर जो सीड्स होती हैं इनसे न्यू प्लांट्स ग्रो किए जाते हैं. ईच सीड हैज अ बेबी प्लांट. हर एक सीड के अंदर एक बेबी प्लांट होता है. द बेबी प्लांट बिगन्स टू ग्रो. यही बेबी प्लांट आगे ग्रो करता है जब सीड्स आपके ग्राउंड पे फॉल करती हैं और उन सीड को एक सफिशिएंट अमाउंट ऑफ एयर, वाटर एंड वार्मथ मिलती है. देन ओनली दैट सीड बिगन्स टू ग्रो इनटू अ न्यू प्लांट. एंड द ग्रोइंग ऑफ अ न्यू प्लांट फ्रॉम अ सीड इज कॉल्ड जर्मिनेशन. एंड यही जो एक सीड से न्यू प्लांट की ग्रोथ होती है इसे सीड जर्मिनेशन प्रोसेस कहा जाता है. ओके, सो द चैप्टर इज कंप्लीटेड ओवर हियर. I hope you must have understood about the different parts of a plant along with their functions. Let's meet very soon in the next class. And then take care and thanks to everyone.